A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start the chapter number 5. So the first topic is torque, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. So what is the torque? देखिए, a force which keep body rotating in about its axis is known as the torque. क्या है? Turning effect produced in the body by applying force acting at a certain distance from the axis of the rotation is known as the torque. Torque जो है बेटा, torque को टॉस से शो किया जाता है. This one is the cross product of the position vector and force like this. This one is the formula for the torque. So आप देखें यहाँ पे अगर torque को देखा जाए, torque is a vector. That means it should have the magnitude as well as the direction. When you talk about the magnitude of the cross product, you know that R F sine theta. Basically this one is the magnitude. And what about the direction? For the direction we use the unit vector. You may represent by the N or R, you may. So this one is the formula for the torque. But when you talk about the magnitude, so magnitude, when you talk about the magnitude means torque, that's the magnitude is equal to RF sine theta. And again, if you go through the same magnitude, this magnitude is equal to आपको पता है बेटा F sine theta. This one is the perpendicular component of the force. You may write here force. This one is the perpendicular component. In both cases, we can use the both formulas for the magnitude. Torque is equal to RF sine theta. RF sine theta, this is the formula only for the magnitude, not for the direction. For the direction of any vector, we use unit vector. So n cap, you have this one n cap, that shows the direction of the vectors. So beta, torque about axis is defined as the cross product of the position vector and the force. यहाँ पे अगर हम टार्क की बात करें, लेट सपोज these are the axis, this one is the origin, this one is the x axis, that one is y axis. अगर सपोज करें कि पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O to any point, let's suppose over here, that at that point this one is the position vector R, and a force is applied over here at that point. The force is applied, F force is applied. So that means this force over here, let's suppose this one. So this force having the two components, this one is perpendicular component of the force and this one is parallel component of the force. You know that this perpendicular component is equal to F sine theta, while this parallel component is equal to F cos theta. But we only need, we need only the perpendicular component of the force. That's why F perpendicular is equal to what? F sine theta. We have to use this one. So that we've already done. This one is angle of the 90 degree. So this one is the position vector. R is a position vector which is always directed from the origin to any point. At the point where the force is being applied, we are having the force which is making an angle theta with this position vector, but we have to resolve this force into the two components. One is the parallel component, other one is vertical component. Here we are using the perpendicular component. So dear students, after that, ये जो टार्क का अभी आपने फार्मूला किया बेटा, आपने देखा था इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, पहली बार आपने कहा था सर मैग्नीट्यूड का फार्मूला है आर एफ साइन थीटा. Remember one thing, depends on the angle. अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टार्क भी आपका क्या होगा? मैक्सिमम. कैसे होगा? यू नो दैट साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1. और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. दैट मीन्स if theta is equal to 90 degree, then the torque will be maximum. So over here torque is called maximum torque when RF sine 90 degree. That means the magnitude of the torque is a maximum when RF sine 90 is equal to 1. That's why torque is maximum when this formula is maximum torque formula is the product of the magnitude of the position vector as well as the force applied. So the product of the two magnitudes always produce the magnitude of the torque which must be the maximum. इसी तरह से बेटा अगर हम एंगल 0 ले लें, अगर सपोज करें if theta is equal to 0 degree, then you know that the magnitude of this torque is equal to क्या था? RF sine theta. That means
टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री अगर हम लेंगे बेटा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ अपनी जगह पे साइन 0 बराबर 0 के होता है। दैट मीन्स व्हेन the position vector and the force are the parallel, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? पैरेलल, that means that should be 0. so टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितनी हो, 90 डिग्री, और इसका टॉर्क 0 टॉर्क कहलाएगा जब आपके पास एंगल क्या हो, 0 डिग्री. so that was the two conditions for the torque, when it will be maximum and when it will be minimum. उसके बाद आपके पास है the direction of the torque is along the perpendicular to the plane containing the r and f. you know that दो vectors किसी plane पे जब draw करते हैं, let's suppose this board is your plane, this board is a plane, let's suppose f is supplied over here, this one is the f and this one is the position vector r. you know these are the two vectors, the angle between them is the theta. so as the torque is a cross product, that means by right hand rule you can find the direction like this. It may be outward or inward. When anti-clockwise direction is given, that torque is always positive because the angle is going to increase. When you move, and angle is always made from the positive x-axis, so when you move in an anti-clockwise direction, angle is going to increase. That means torque is going to increase as well. But when you come in a clockwise direction, the angle is going to decrease. That means the magnitude of the torque will decrease. so ये आपके पास the direction of the torque is along the perpendicular to the plane containing r and f. it is obtained by the right hand rule. you have done the right hand rule in the vector scalar chapter as well. we have done. so it is obtained by the right hand rule, and SI unit, look at this one, very simple one. so torque, magnitude of the torque, that's equal to RF, क्योंकि sin थीटा क्या है, रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. सो इसका मतलब यहाँ पे आप अगर पोजीशन वेक्टर क्या से ले तो मीटर और न्यूटन, और सिंपली इसको लिखा जाता है न्यूटन मीटर. सो न्यूटन मीटर इज अ यूनिट ऑफ द टॉर्क. आमतौर पे अगर देखा जाए बच्चों के जहन में आता है सर वर्क का यूनिट भी तो न्यूटन मीटर होता है जो बराबर जूल के होता है, लेकिन याद रखिएगा जूल इज इन टर्म्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी. सो इसका टॉर्क का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर, इसको कलेक्टिवली हम जूल नहीं कह सकते. जूल इज यूज्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी. सो एनर्जी is a scalar quantity. in terms of the vector we only use Newton meter, not joule. so that was the main difference between them. their dimension may be the same. dimension energy हो, work हो, टॉर्क हो, इनका डायमेंशन तो सेम हो सकता है, लेकिन इनका यूनिट जो है वो सेम नहीं होता, बल्कि यूनिट जो है एनर्जी का हम क्या लेते हैं, जूल लेते हैं, और टॉर्क का क्या लेते हैं, न्यूटन मीटर ही लेते हैं. अब अगर यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन की बात करें, वी हैव डन इन द चैप्टर नंबर 1 एज वेल, दोबारा से हम थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई. न्यूटन मीटर, दिस वन इज अ यूनिट. आपको पता है न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2. एक मीटर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, दैट मीन्स किलोग्राम बेस यूनिट में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2. तुम अब डायमेंशन की बात करें, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास, दैट मीन्स m. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीन्स l स्क्वायर. टाइम सेकंड, सेकंड किसका है, टाइम का. सो दिस वन इज द बेसिकली द डायमेंशन ऑफ ml पावर 2 t पावर -2. दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क. इसी तरह से ये जो रोटेशन जो प्रोड्यूस होती है किससे, द फोर्स विच प्रोड्यूस द रोटेशन इज नोन एज द टॉर्क. बेसिकली या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है. इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है ना बेटा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वेक्टर. उसके बाद अगर आप वेक्टर के बाद अगर आप बेटा आए तो इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, अच्छा एक और चीज कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं. आई जस्ट टोल्ड यू when you move anti-clockwise, because the angle is always measured from the positive axis. as you go like this in anti-clockwise direction, angle is going to increase, that's why it's taken as a positive. and when you move in a clockwise direction, that means this one is negative. तो याद रखिएगा anti-clockwise direction को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, नेगेटिव. अब उसके बाद एक जो चीज हमारे पास है वो मोमेंट आर्म क्या है. लेट्स सपोज बेटा लाइक दिस माय हैंड, ये जो मेरा बाजू है यहाँ पे, अगर सपोज करें दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, मैं आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूँ. Right. So this distance, the perpendicular distance between the line of the action of the force and the axis of the rotation is known as moment arm. जैसे सपोज करें बेटा अगर कोई एक बॉडी है, यहाँ पे इसको हिंज किया गया है, this one, let's suppose this one is the body.
So this is the axis of the rotation. This one is axis of rotation. अगर ये axis of rotation है, this one is the axis of the rotation, and I applied the force over here. This one force is applied. That keep on moving. So अब ये जो distance है, the perpendicular distance from the axis of the rotation to the application of the force. So application of this is known as moment arm. Moment arm क्या है? Vector quantity है. क्यों कह रहे हैं? Because it's directed from the axis of the rotation to the application of the force. So the perpendicular distance made from the axis of the rotation to the line of the action of the force is known as moment arm. Moment arm को बेटा किससे शो करते हैं? R से भी कर सकते हैं आप इसको, D से भी कर सकते हैं, it's up to you. L से भी आप कर सकते हैं, it is denoted by, आमतौर पे हम इसको D से भी कर सकते हैं. So इसका मैग्नीट्यूड D इज इक्वल टू क्या होता है? R sin थीटा के. इसका मतलब है चाहे तो आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से भी शो कर सकते हैं. इसी तरह से बेटा द मैग्नीट्यूड अगर टार्क का मान, टार्क क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सपोज करें टार्क जो है वो बराबर है R क्रॉस F के. यू हैव डन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इन चैप्टर नंबर 2 कि क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें. तो अगर बेटा यहाँ पे आपके पास देखा जाए इसके मुताबिक, तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर, एक आपका पोजीशन वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स इन द स्पेस. एक क्या होगा? एक्स आई वाई जे के. This one is the position vector in a space having the three components along the x-axis, y-axis and z-axis. In a same way, force applied in a space should have the three components as well. So that means fxi plus fyj and plus fzk. So this one is the position vector. अच्छा, इसकी अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हम मालूम करने जा रहे हैं, ये कोशिश कीजिएगा समझने की हम किस तरह से कर रहे हैं. ये फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं. तो बेटा अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मालूम करना है टार्क जो बराबर किसके है? R क्रॉस F के. तो आपके पास टार्क जो है वो बराबर हो गया, टार्क बराबर होगा मैग्नीट्यूड से पहले हम क्या करें? पहले टार्क मालूम करते हैं फिर मैग्नीट्यूड. टार्क इज इक्वल टू किसके? इसको हम क्या करेंगे? R क्रॉस F के करेंगे. तो आपके पास R की वैल्यू अभी आपने कही थी सर, R की वैल्यू क्या थी? XI प्लस क्या था? YJ प्लस क्या था बेटा? ZK. इसी तरह से क्रॉस किसके साथ है? F के साथ. सो FXI प्लस FYJ प्लस FZK. सो दैट वाज. अब इसको हल करने का तरीकेकार क्या है? आप पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या से. इसको कैसे मालूम करें? इसको मालूम करने का तरीकेकार क्या है कि पहले I J K, दीज आर द थ्री वेक्टर्स. पहला वेक्टर हमेशा इसमें पोजीशन वेक्टर आ, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? X, Y और Z. फोर्स के क्या? Fx, Fy और Fz. अगर इसको हम हल करें बेटा, तो इसको हल करने के लिए तरीकेकार आपके पास क्या है? तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो I के हवाले से लेंगे, I के कंपोनेंट्स को छोड़ देंगे. फर्स्ट आपने बॉक्स बनाया जिसमें आपने I, यहाँ पे I के अंदर I के कंपोनेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे क्या है आपके पास? Y, Z, Fy, Fz. फिर अल्टरनेट साइंस चलते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? माइनस. आप किसका करने जा रहे हैं? आप करने जा रहे हैं आप J का. तो J के कंपोनेंट्स को आप छोड़ देंगे, क्या बचा? X, Fx, Z, Fz. So this one and then again plus. अब हम किसका करने जा रहे हैं? K का. तो K में आप K के कंपोनेंट्स को छोड़ देंगे, X, Fx, Y और Fy. अब इसको किस तरह से हल कैसे किया जाए बेटा? थोड़ी सी बस अब थोड़े से इसमें टॉपिक को इसको अगर समझें, डेरिवेशन में क्या है? तो टॉर्क इज इक्वल टू इसको राइट डायगोनल, इसको लेफ्ट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स Fy मल्टीप्लाइड बाय y, ऐसे लिख दें. और माइनस, इस माइनस फार्मूले का इनको अगर आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा F, ये यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे z है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fy इंटू z, और यहाँ पे I आ गया. फिर माइनस ये, अब पहले इनको किसको? Fz इंटू x और माइनस Fx इंटू z. और ये आपके पास किसका आ गया? ये आपका पूरा जो फैक्टर है किसका हो गया? आपके पास j का हो गया. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आप प्लस करके यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे आपके पास k का करना चाह रहे हैं, तो f
y इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई, ये आपका क्या हो गया k का। तो अब अगर इसको पूरे को हम सम अप कर रहे हैं, जो फार्मूला फंडामेंटल फार्मूला इसका बनेगा जिसपे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो किस तरह से, सो टार्क इज इक्वल टू व्हाट, एफ जेड इंटू वाई माइनस एफ वाई इंटू जेड, ये आई, और माइनस एफ जेड इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जेड, ये हो गया j, फिर प्लस यहाँ पे हो गया एफ वाई इंटू एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू वाई k। सो दिस वन इज द फार्मूला फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस फार्मूला मालूम करने के बाद अगर देखें, इफ द लाइन ऑफ द एक्शन, क्या मतलब लाइन ऑफ द एक्शन, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो फिर आपके पास मोमेंट आर्म क्या होगी, जीरो। जब मोमेंट आर्म जीरो होगी तो आपका टार्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस देयर विल बी नो टार्क प्रोड्यूस व्हेन द फोर्स पासिंग अक्रॉस द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, दैट मींस द मोमेंट आर्म विल बी जीरो, सो टार्क विल बी जीरो एज वेल। उसके बाद न्यू टॉपिक आपके पास है कपल। ये देखिए बेटा, कपल है क्या चीज। लेट सपोज बेटा, कपल करने से पहले हम एक आइडिया लेते हैं। दिस वन इज द बॉडी, दिस वन इज द बॉडी। लेट सपोज दिस वन इज द पॉइंट वेयर अ फोर्स F1 is acting upward with a 6 Newton magnitude and F2 is acting downward with the same magnitude 6 Newton. Can you tell me body will be in upward direction or downward? No, there will be no motion because they both are balancing force. They are balanced force. That's why body will not move. हाँ, अगर ऐसा होता यहाँ पे 8 न्यूटन होता, body should have to move in upward direction. You know why? Because the magnitude of F1 is greater than F2. So there is a difference of the 2 Newton. Body will move upward with the magnitude of the 2 Newton only. लेकिन अगर ऐसा होता बेटा कि यहाँ पे 6 न्यूटन होता और यहाँ पे 9 न्यूटन होता, तो body will should have to move in a downward direction with a 3 Newton force, right? But these forces, when the magnitude is same, balanced forces, and in this case when the magnitude is not same but they are passing through the same line of the action, these are unbalanced forces. These forces are known as unbalanced forces. लेकिन अगर एक और कंडीशन की तरफ हम देखें बेटा, एक और कंडीशन क्या है, let's suppose this one is the body, this one is an object, one force is acting over here, F1, that is equal to 6 Newton, another force is acting over here, F2, 6 Newton। देखें यार, ये तो बैलेंस फोर्सेज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट वेदर यू कैन नॉट कीप द बॉडी इन अ रेस्ट। लुक एट दिस, इफ द फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, इट विल स्टार्ट टू रोटेट, यू नो व्हाई। सो अगर इसकी लाइन ऑफ द एक्शन ये सेम होती तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती, but as you know that forces having the same magnitude, opposite in direction, but their line of the action is not same, that's why the bodies will not be in the state of the equilibrium. So what these forces are known, when the two forces acting at a body having the same magnitude, opposite in a direction, but their line of the action is not same, then the body will rotate about its axis. This couple, this pair of the forces is known as a couple of the forces. Couple क्या है, दो forces जिनका magnitude same हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, किसी बॉडी पे अप्लाई करने से अगर वो बॉडी को रोटेट करवाएं, क्यों रोटेट करवाएंगी, जब उनका लाइन ऑफ द एक्शन सेम नहीं होगा, दैट्स नोन एज अ कपल। कपल की वजह से अगर रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको, उस टार्क को क्या कहेंगे, टार्क ड्यू टू कपल कहेंगे। क्या कहेंगे, टार्क ड्यू टू कपल। तो बेटा टार्क में सिर्फ फर्क ही आ जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो आपकी जो फोर्सेज है, ये F2 है, ये आपकी क्या है, F1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये भी F है, ये भी F है। इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप D से भी शो कर सकते हैं, L से भी शो कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्या है, कपल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कपल आर्म। सो द टार्क ड्यू टू कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ force. So this one is the formula for the torque due to couple. इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है सेंटर ऑफ मास। डियर स्टूडेंट्स, it is the point at which the whole mass of a body is concentrated at that point and all the applied force are acting at that point. बेटा देखिए, ये जैसे सपोज करें ये मेरे हाथ के ऊपर ये डस्ट रखा हुआ है,
ये ऐसे इरेजर मैंने रखा, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इट स्टार्ट टू रोटेट, ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तब भी रोटेट कर रहा है, लेकिन बिल्कुल सेंटर में अगर यहां कर रहा हूं तो ये ऐसे रोटेट करने शुरू हो जाता है, लेकिन सेंटर में कर रहा हूं तो पूरी की पूरी बॉडी में एक मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस मोशन इज नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। किसी बॉडी में वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास कहते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? A point in a body where all the forces appears to act, ये कब होती हैं? जब बॉडी पे फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई किए जाएं, ऐसा लगे कि सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे असरअंदाज हो रही है, और जब ऐसा होता है तो बॉडी में हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है। मैंने अभी आपसे कहा फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं 5 न्यूटन, यहां पे अप्लाई कर रहा हूं तो ये रोटेट कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। यहां अप्लाई कर रहा हूं तब भी रोटेट कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इसके बिल्कुल सेंटर में कहीं ऐसी जगह जहां से ऐसे अप्लाई करूंगा तो पूरा जो है ऐसे लगेगा कि सारे पार्टिकल्स एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सो इट्स अ पॉइंट एट विच the whole mass of a body is concentrated at that point, and all the applied forces are acting at that point. So the motion of a body is the same as the motion of the center of the mass. अब देखें, अगर डिफरेंट फोर्सेस आपके पास है, एक नहीं कई फोर्सेस आ जाएं, लेकिन सारी फोर्सेस अगर उसी पॉइंट पे ही एक्ट कर रही है, तो आप याद रखें उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ही प्रोड्यूस होगा। तो सेंटर ऑफ मास के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि जाहिर है स्पेस के अंदर जब बॉडी मूव करती है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट और जेड का। अगर सपोज करें एक्स कंपोनेंट की हम बात करें, एक्स कंपोनेंट किसका? सेंटर ऑफ मास का। दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द डिस्टेंस। कैसे? पोजीशन वेक्टर के हाल से हम जाएंगे। यहाँ पे आपके लेट सपोज, पहले हम ऐसा करते हैं, सपोज करें 3 फोर्सेज है, तो इसका मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाय टोटल मास मींस m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसको अगर सम अप करके रखा जाए मैथमेटिकल साइन के अंदर, तो इसको किससे शो करेंगे? सिग्मा। सिग्मा क्या बेटा? सम किया किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द पोजीशन वेक्टर का। आई का मतलब आपको पता है, आई का मतलब है स्टार्ट कहां से हो रहा है? आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यस दिस वन इज 1, एंड कहां हो रहा है? यहां 3 हो रहा है, तो यहां पे हम 3 लिखते हैं। लेकिन अगर यही आपका कंपोनेंट 3 तक ना हो, उससे ज्यादा हो, प्लस प्लस अप टू n, अप टू कहां है? अप टू कहां तक? mn और xn तक, और ये भी क्या है? mn तक। तो फिर हम इस फार्मूले को कैसे लिखें? बहुत सिंपल सा। सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू समेशन करेंगे, समेशन किसका? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द पोजीशन वेक्टर का। आई स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दैट्स 1, एंड कहां? एंड पे। यहां पे आप क्या लिखेंगे? एंड। सो दिस इज द फार्मूला फॉर। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे आप। डिवाइड किससे करेंगे? सम, ये भी सम है, किसका? सम मासेस का, m का। स्टार्ट्स फ्रॉम आई, आई क्या किसके बराबर? 1 की। एंड कहां हो रहा है? एंड पे। सो दिस वन इज द एक्स कंपोनेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह से बेटा y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। y कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा? yc इज इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू 1n। m यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से z कंपोनेंट आपका सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? सम ऑफ i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड एट n। m यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? z आ जाएगा। सो दैट वुड बी I, look at this one। बच्चे बहुत से क्वेश्चन करते हैं हमेशा, सर आप सब में I क्यों लगा रहे हैं? यहाँ x में I लगाया था, y के साथ तो j लगा रहे, नॉट नेसेसरी। ये आपको इनिशियल पॉइंट को शो कर रहा है। दीज आर नॉट द यूनिट वेक्टर्स। जो आपके जहन में एक होता है I J की आर द यूनिट वेक्टर्स, सो दैट वन इज द डिफरेंट थिंग्स। सो वेयर ये x I जो हम शो कर रहे हैं या y कर रहे हैं, ये किसको शो कर रहे हैं? उनके मासेस के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हैं। सो दैट वाज द सेंटर ऑफ द मास। उसके बाद हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, आमतौर पर हम टीचर्स भी पढ़ाते हुए से कर जाते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों में फर्क क्या है। देखिए मैंने क्या कहा, वो पॉइंट जहां पे फोर्स अपीयर्स टू एक्टिंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर वो पॉइंट जहां पे अर्थ अप्लाई करे, फोर्स, अर्थ जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या वेट कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। लेट सपोज इसको अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या कर रही है? नीचे आ रही है। You know why it's coming down? Because of the pull of the earth. That's known as the weight. Means a point in a body where whole the weight appears to act, that point is known as the center of gravity. बेटा
आमतौर पे अगर कंजर्वेटिव फील्ड हो, अब हमारे पास बात आ रही है सर ये कंजर्वेटिव फील्ड है क्या? ऐसी फील्ड जहां पे क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन क्या हो जीरो, तो उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। जैसे हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड जहां पर भी होगी वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड्स, ये दोनों हमेशा क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स सेम जगह पर। हाँ ये जरूर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना बेटा, इनसाइड द मैटर भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे सपोज करें मैं इसको लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के इनसाइड है, कहीं पॉइंट अगर यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल शेप लेंगे इसके अंदर जाके सेंटर में। लेकिन अगर मैं बैंगल ले लूं, चूड़ी ले लूं या कोई बाउल ले लूं तो उसका सेंटर, जैसे रिंग ले लें, आप कोई रिंग भी ले लें तो उसका जैसे बाउल है, प्याला होता है, उसका सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पे होगा। जैसे फुटबॉल ले लें आप, इनसाइड जो है वो आपके पास क्या? वैक्यूम है ना, वैक्यूम के अंदर आएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी शुड लाई इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड, बट इट इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट वेयर all the weight appears to be existing. That's known as the center of the mass. So after that, the center of the gravity of the extended bodies ऑलवेज कोइंसाइड्स। एक्सटेंडेड बॉडीज आपको समझ में आ गई होगी बात, कौन सी एक्सटेंडेड बॉडी? जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो उसको कहते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।